This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اور پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ماہ صیام اور معاشرتی ذمہ داریاں۔ آج ہمارے معزز مہمان جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرائی دیتا ہوں۔ چیئرمین گلستان گروپ آف کمپنیز، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ ملتان، معروف مذہبی اسکالر، صاحب کتاب، گلستان لائنز کلب ملتان کے صدر، YCDO کے بھی روح رواں، میری مراد ہمہ جہت شخصیت جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی۔ میاں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور ناظرین، ایک اور ایسی شخصیت کہ جن کا تعارف کراتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جو ان کی شخصیت کی عکاسی کریں۔ وطن عزیز کے نامور صحافی، کم و بیش 25 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ، آپ سماجی رہنما بھی ہیں، ادیب و دانشور بھی، اور خاص طور پر معاشرتی رویوں کے حوالے سے احساس رکھنے والی ایک ہمہ جہت شخصیت۔ ٹریفک کے نظام کی بہتری کے لیے آپ ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ اصلاح معاشرے کے لیے جو کاوشیں ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بھی آپ انتہا درجے کی ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور ان کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے ان کی کتاب بکھرے خواب کو عالمی طور پر پذیرائی حاصل ہوئی۔ میری مراد جناب ناصر محمود شیخ، اور اس شعر کے ساتھ کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ناصر بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، انتہائی ممنون۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، سو آج تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت بھی انہی کو حاصل ہونے جا رہی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. اب میں نعتیہ کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد. قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد. اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گے رخ بدل کر. یہ جیسے آج کل کے حالات میں کورونا کی وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر. ناخدا ہیں میرے جب محمد، ناخدا کیپٹن کو کہتے ہیں، ملاح کو، فارسی زبان کا لفظ ہے. ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ. ناصر بھائی، پہلا سوال کہ آپ معاشرتی ذمہ داریوں سے کیا مراد لیتے ہیں، اور یہ جو ذمہ داریوں کے پیرامیٹرز ہیں کیا یہ ایک جیسے رہتے ہیں یا نظریے ضرورت کے تحت تبدیل ہوتے رہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. یور ورک از ریمارکیبل. آپ لوگ یہاں ان پروگراموں کی وساطت سے لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں، میسج دیتے ہیں، خیر کا پیغام دیتے ہیں. ابھی جیسے قاری رؤوف صاحب نے کتنے خوبصورت انداز سے ایک سحر باندھ دیا، سما باندھ دیا. اللہ تعالیٰ نے کو جزا دے. یہ بھی بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ایسی خوبصورت آوازیں ملیں اور وہ اللہ کی شان، نبی کی شان میں اس کو استعمال کریں. اب جو معاشرتی ذمہ داریوں کی، رویوں کی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، تو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح سے 9 سیارے ہیں، یورینس، نیپچون، پلوٹو، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل. ہماری زمین بھی تو ایک سیارہ ہے نا.
تو اللہ کی تخلیقات کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ اس نے کتنی بڑی بڑی تخلیقات کی ہیں. ایک زمین ہمارے لیے بہت بڑی قرآن بہت بڑی زمین ہے, اللہ کے لیے تو چھوٹی سی چیز ہے. اب ہم اس زمین پر اگر اتراتے پھرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے تو یہ تکلیف دہ عمل ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ نے انسانوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے فرما دیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں, مخلوقات میں بہت افضل ہیں. تو اللہ کے نزدیک تو وہ افضل ہے جو دوسرے لوگوں کا بھلا سوچے, دوسروں کے لیے اچھے کام کرے, اچھائی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی احاطہ نہیں, یہ کینوس بہت وسیع ہے کہ آپ اس کا تجزیہ کرنے بیٹھیں. تو بس یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں, سماج کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, اپنے دکھ درد کے علاوہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ خوش نصیب لوگ ہیں, اللہ ہی یہ کام لینے والا ہے. تو میں تو تمام سماجی کارکنوں کو ہمیشہ سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس زرزمین کو, اس قریرز کو ان کے کاموں نے خوشبودار بنایا ہوا ہے. واہ 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 واہ. انشاءاللہ جو آپ کی سماجی خدمات ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے سوال میں کرتا ہوں. قاری صاحب, ماہ سیام میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ماشاءاللہ وہ مساجد کا رخ کرتی ہے. یہ الگ بات کہ وہ رمضان شریف کے بعد پھر اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مسجد اور ممبر کا استعمال ہے ان کی شخصیت میں تبدیلی کے لیے ہم اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان پر اثر انداز ہو؟ بہت شکریہ جناب راجہ کوثر سعیدی صاحب اور جناب ناصر شیخ صاحب. گزارش یہ ہے کہ جیسے ناصر بھائی نے ابھی فرمایا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آج کل کے دور میں اتنے اچھے اور سنجیدہ موضوع کا انتخاب کرنا ہی کسی بوریت سے کم نہیں ہے اور صدقہ جاریہ سے بھی کم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی, آج کل کے موضوع میں جس میں لچھن دار گفتگو اور لچھن دار جو ہے وہ جو ہے اس میں باتوں کے علاوہ ہم اور کوئی ٹیسٹ ہمیں بھاتا ہی نہیں ہے. ہاں جی 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 جی, اس میں جناب اس طرح کے موضوع آپ لے کے بیٹھ جائیں کہ جی ممبر اور مسجد اور محراب سے کس طریقے سے استفادہ کرنا ہے اور معاشرتی ذمہ داریاں ہیں کیا اور ان کو نبھانا کیسے ہے. تو یہ بہرحال اپنی جگہ پہ ایک جہاد سے کم نہیں ہے اور صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہے. اور یہ اسی کی طرح ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو پرندہ تھا جس نے کہا کہ میں آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میرا اس لسٹ میں نام آ جائے. جو یوسف کے خریداروں میں جو وہ بڑھیا آئی تو لسٹ میں نام آ جائے. بس ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اس لسٹ میں نام آ جائے کہ میرے مالک جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے ہم بہرحال سنجیدہ گفتگو کر کے اپنے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کیا وہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو بہرحال ہم اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں. جی دیکھیں محراب و ممبر سے جو انقلاب برپا ہوا آج سے 1400 سال پہلے, وہی فارمولہ جو ہے ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا, اور اسی سے ہی دوبارہ بھی انقلاب آئے گا. ہماری تمام معاشرتی ذمہ داریاں, اب دیکھیں کیا ذمہ داریاں تھیں. یہ ابو ہریرہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کا مطلب ہے, ہریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں, ابو کا مطلب ہے بلیوں کا باپ. تو ابو ہریرہ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں, تو ان کے قمیض کے اوپر بلی آ کے بیٹھ گئی. وہ جب اٹھے نماز کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ بلی جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یار اس کی جو ہے وہ نیند میں خلل نہ آئے. انہوں نے اپنی وہ قمیض کا ٹکڑا جو ہے وہاں سے پھاڑ دیا اور وہ اٹھ کے مسجد میں گئے. جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ہو سکتا ہے تھوڑی سی اس میں کمی بیشی ہو لیکن بہرحال کچھ راویوں نے اس طرح سے بھی لکھا ہے. تو فرمایا بھائی یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہوا کہ بلی سوئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو بے آرام کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا. اب یہ ممبر کا تقاضا تھا نا جی, تو ذمہ داری نبھائی گئی.
जी मेंबर का तकाजा था कि एक गज़बे के अंदर आप देखें कि एक बूंद जो पानी की है वो एक सहाबी से दूसरे तक गई, दूसरे से तीसरे तक गई, तीसरे चौथे वो इशार कुर्बानी का वो मेंबर ही तो था ना जी। मेंबर के अलावा क्या चीज़ थी आपके पास? मेंबर के अलावा तो वहाँ पर कोई और मीडिया नहीं था हमारे पास ना। हमने मेंबर के मीडिया को ही इस्तेमाल किया। और आप देखें इस वक्त जो भी हो रहा है हमारा मुआशरती तौर के ऊपर, सबसे पहले आप देखें वो एनसीसी ट्रेनिंग थी हमारी, जिसको अल्लाह ने फरमाया हर वक्त अपने घोड़े तैयार रखो, दुश्मन के खिलाफ हर वक्त तैयार रहो। सबसे पहले आज से वो 25-30 साल पहले एनसीसी ट्रेनिंग ख़त्म कर दी गई। उसके बाद फिर ये अजान के लिए स्पीकर आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके अलावा खुतबे के लिए इस्तेमाल होते हैं। और खुतबा वो है जो किसी को समझ नहीं आता, जो उर्दू खुतबा है उसके ऊपर वो चीज़ें जो है ना बंद कर दी गई हैं कि इल्ला माशा किसी के आवाज़ किसी के कानों में शायद कोई जो है ना अल्लाह रसूल की आवाज़ कुछ पहुँचती हो तो कम अज़ कम उसको भी रोका जाए। तो बहरहाल मेंबर और महराब की ये जो मामलात हैं उसके बावजूद भी आप देख लें कि जो है जो इस वक्त चैरिटी है वो वर्ल्ड के अंदर अगर कोई चैरिटी देने वाला मुल्क है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सर फहरिस्त हमारा मुल्क है, वतन अजीज़ पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिम्मेदारियाँ तो बहरहाल निभाई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निभाई जा रही हैं, ठीक है ना जी। इतने बड़े बड़े आप देख लें अस्पताल बने हैं, इतने बड़े बड़े आप देखें इदारे बन रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के सदक़ात और खैरात से चल रहे हैं। और ऐसे गरीब मुल्क जिसको आप गरीब कहते हैं वहाँ की आवाम इतनी सखी दिल भी है। और बाकी बहरहाल जो है मेंबर को आप जितना भी मजबूत करते जाएंगे, नौजवान नस्ल को अपने करीब लेके आएंगे, इंशाअल्लाह ताला इसका आने वाले वक्तों में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन एक वक्फे का वक्त हो जाता है और वक्फे के बाद इंशाअल्लाह सिलसिला कलाम जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई निशी आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेजेबल, बोले की बोलियां, साइकिल की सुबह है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेजेबल, बोले की बोलियां, साइकिल की सुबह है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेजेबल, बोले की बोलियां, साइकिल की सुबह है शमा, साइकिल की सुबह है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना।
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल बरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। जो बात अब मैं करने जा रहा हूँ ज़रा उसे गौर से समाअत कीजिएगा। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और इंसानों के अलावा जो हशरातुल अर्ज़, चरिंद परिंद और दीगर मखलूक़ात हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। मैं देखता हूं कि नासिर भाई की जो पोस्टें हैं रोज़ाना फेसबुक पर, उसमें उनके घर के बाहर हर रोज़ सुबह बिल्लियां, कौवे और चीलें मुंतज़िर रहते हैं दावत शिराज के। तो मैं जानना चाहूँगा कि नासिर भाई ये जो मामूल है
ये किस तरह जारी हुआ और मुआशरती तौर पर आप क्या महसूस करते हैं कि इस सिलसिले को किस तरह आगे जारी रखा जाए? अजय बहुत शुक्रिया। है तो मेरा ज़ाती अमल, आपने उसको बात को तरगीब के लिए कर दिया, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है हम सब जानते हैं कारी साहब के पुराने दौर में बुजुर्ग हमें ये तलकीन करते थे कि पानी का को बर्तन रखो, और ये बड़ी रिवायात थी जो अब नापैद होती जा रही हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि हमसे शायद गिले शिकवे करते हैं ये चीलें कव्वे। मेरे वाले साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो मुझे अक्सर हम बात करते थे तो वो कहते थे यार ये हम थोड़े से खुदगर्ज तो होते हैं ना, हमें जिन जानवरों से फैज़ या फ़ायदा मिलता है हम उनका तो बहुत केयर करते हैं, तो हम चीलों कमों को यार नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हमारे किसी काम के बज़ाहिर नहीं है। लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है कि उसने कोई भी चीज़ ऐसी पैदा नहीं की कि जिसका फैज़ इंसानों को ना मिलता हो। तो बज़ाहिर हम ये समझते हैं कि ये बहुत गहरी बात, लेकिन चलें हम उसके फैज़ को ना देखें, हम ये देख लें कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां हैं कि अपने हाँ जी बिल्कुल, तो हमें इसको पूरा करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। तो 9 साल से मेरे वाले साहब की वफ़ात के बाद से हमने इस अमल को जारी रखा हुआ है, और मतलब खुद ब खुद ही घर मेहमान आ जाते हैं। हमने परिंदों को कैद में या पिंजरे में नहीं रखा, मैं समझता हूँ कि पूरा एरिया ही उनके लिए एक पिंजरा है, आज़ादी से सांस लें। तो आपके सवाल के बाद मैं यही कहूँगा कि ये सबको अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ानी चाहिए कि हम अपने से जो कमतर मखलूक है, चाहे वो इंसानी शक्ल में है चाहे परिंदों की शक्ल में है जी, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, माशाअल्लाह, और हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। नासिर भाई देखें, आपकी जो ये तरगीब है ना, ये अनगिनत लोगों को इस तरफ राग़िब कर रही है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। यानी मैं भी आपसे मुतासिर हूँ, सीधी सी बात करूँ, और बहुत सारे लोग महसूस करता हूँ कि वो भी ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी एक छोटी सी नेकी की तरगीब जो है वो अनगिनत लोगों को इस तरफ राग़िब कर रही है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना कि कारी साहब वो कहा कि अपनी मंजिल पे पहुंचना खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। तो अब तो बड़े होना भी मुश्किल नजर आ गया, थोड़ी सी दुश्वारी आ गई। मैं आपको अपने माशरती निज़ाम का बड़ा अच्छा तजिया मैं सोचता हूँ कि एक घर में अगर 5 भाई हैं, अगर सबसे छोटा ज्यादा कमाता है तो वो सबसे बड़े का किरदार कर रहा होता है। जी बिल्कुल। अब इसमें उम्र का जो बड़ा छोटा होना है वो एक तरफ रह गया, अब अपने किरदार से बड़ा बनना है। वाह वाह वाह। और यही अमल हमने अपनी अमली जिंदगी में भी करना है। अच्छे अमल करेंगे तो हम बड़ों जैसा काम कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये अपने इस पैगाम को नुमायां करना है इंशाअल्लाह। मियाँ साहब, आजकल कोरोना के सबब बहुत सारे मुआशरती मामलात और मईशत के मसाइल पैदा हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुआशरती रवैये ख़ासतौर पर माह सयाम में क्या होने चाहिए कि जिससे हम अनगिनत जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि यही मौजू हमारा चल रहा है कि बतौर अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपने हमें मबूस किया, और अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख एहसान है। पहले तो जो बात हम कर रहे थे कि परिंदों चरिंदों को जो नासिर भाई ने एक ये अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा उठाया है, तहरीक चलाई है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी अपने ऑफिस में बाकायदा अपने गार्ड की ड्यूटी लगाई हुई है, बेटा आप सवेरे आओ, सबसे पहले आपने बर्तन पानी वाले धोने हैं। वो मैंने मिट्टी के 8-10 बर्तन ला के दिए उनको धोने हैं, और उनके अंदर बाजरा रखना है और पानी रखना है, और इनको यार बिल्कुल इसके अंदर कमी ना आने पाए। ठीक है, अल्लाह गवाह है। एक दफ़ा मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो एक चिड़िया वो मेरे सामने बर्तन पड़ा हुआ था, वो आई, उसने थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा सा एक अद्धा दाना लिया। अल्लाह गवाह है कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मैंने कहा यार इसका जो हिस्सा है ना वो नासिर शेख को मिलेगा। ठीक है ना जी।
हालांकि देखें ये उन्होंने पहले कहा यार ये मेरा ज़ाती अमल था, अगर आप ज़ाती अमल पे ही रखते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी ज़ाती अमल था, उन्होंने सारा माल जो ला के अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर दिया, उनका ज़ाती अमल था, लेकिन वो हमें पता है आने वाली नस्ल को, आने वाली पूरी उम्मत के लिए वो मिसाल थी कि वो अपने घर का सारा सामान लेके आए, हज़रत उमर फारूक आधा सामान लेके आए, इस तरह से हज़रत उस्मान सामान लेके, वो सारी हमारे पास कैलकुलेशन मौजूद है, तारीख का हिस्सा है। इसी तरह से अगर नीयत ये हो कि मेरे यार दोस्त अहबाब काफ़ी अच्छे हैं, बड़े माशाल्लाह खुशहाल हैं, उनको अल्लाह पाक ने हमारे से ज़्यादा अच्छा वसाइल दिए हैं, वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा खिदमत कर सकते हैं, तो अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। पहली बात तो ये है। दूसरी सर, कोरोना की वजह से ना जो भी अल्लाह का अमल होता है ना, जो भी अमल होता है वो ना किसी हिकमत से खाली नहीं होता। मैं आपको बताऊं, कोई दज्जाल नहीं आना, ठीक है, ये जो सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है, कोई दज्जाल ने नहीं आना, कोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। फिलहाल जो निशानी हमें बताई गई है, एक निशानी भी पूरी नहीं हुई। मेरी बात सुन रहे हैं आप, मैं इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, ठीक है जी, और बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल सिक्का बंद बात कर रहा हूँ, कोई दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है, ठीक है। ये हज़ारों साल बाद की कोई बात हो सकती है, ये तो हमें ऐसे बना के दिखा रहे हैं कि इस दज्जाल की मुलाकात हो गई, वो आजकल में तशरीफ, वो क्या करने आएगा दज्जाल, लोगों को पता ही नहीं है। दज्जाल की तो बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। अच्छा, अभी जो है ना जी, अब आप इसको ले, पहले एक वबा आई एड्स की, एड्स की वबा आई, तो उसका जनाब अभी तक उसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी, ठीक हो गया, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने काफ़ी सारा जो है वो जो बुराई और बेहयाई का जो मामला था ना, उसमें काफ़ी सारा जो है वो उसमें कंट्रोल हो गया। अभी भी आप देख लें, ये जितने पार्कों में जाके डेटे मारते थे बैठ के, आज भी देख लें वो 6 फुट के फासले पे बैठ के बात हो रही होती है। बात ये है कि किसने कहा कि ये हमने जो यहाँ पर उधम मचाया है जी, और ये अभी कोरोना तो भाई हमारे अपने अमाल का जो है, वो जो कुछ भी है हमारा अपना किया धरा है सारा जी। और अब जिम्मेदारियां क्या हैं, जिम्मेदारियां आप देख लें, जगह जगह पे लाखों लोग अल्लाह की राह पे राशन भी तकसीम कर रहे हैं, खाना बनाए भी तकसीम हो रहा है, ठीक है ना जी, और उसमें पेशावर लोग भी शामिल हो गए हैं बीच में, जो असल हकदारों तक जाने ही नहीं देते। तो मेरे इस हिसाब में जो इस वक्त जिम्मेदारी है ना सर, मुझे चाहिए कि मैं जो मेरी फैमिली है ना सर, मेरी यानी कि बिरादरी, जो मेरी कौम है, जो मेरी कौम बिरादरी, जो मेरी शादी खुशी गमी, जो मेरे चाचे मामे नाने दादे फुफियाँ मासियाँ, ये जो मेरी फैमिली है ना जिसमें गरीब लोग हैं, इस असल जिम्मेदारी ये है कि आप उनको ढूंढ के उनका कोई ऐसा तरीका, इज्जतदार तरीका बनाए कि उनकी मदद करें। ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, ज़विल कुर्बा जो है ना वो सबसे पहले आता है, ठीक है, और हम उनकी तरफ हमारी कोई बिल्कुल तवज्जो नहीं है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, और वो फिर बंदे मुस्तरद नहीं होते, वो कन्फर्म नहीं होते कि यार ये वाकई मुस्तहिक हैं कि नहीं है, हमें सवाब मिल जाता है। हमें सवाब, एक साहब भी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसको हम दें किसको ना दें, पता नहीं चलता कौन मुस्तहिक है कौन मुस्तहिक नहीं है। आपने फरमाया जो तुझसे सवाल करे उसको दे, अल्लाह तुझे वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक है, और अल्लाह तुझे वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं है। तो आपने छोड़ दी इस बात को, डिपेंड कर दिया जो सवाल करे, ठीक हो गया। अब सवाल वाले तो बंदे बहुत सारे हो गए हैं, और कुरान में अल्लाह फरमाया कि जब तो उनको देखेगा ना तो उनको खुशहाल महसूस करेगा कि ये खुशहाल हैं, उनकी अंदर की जो गैरत है, उनकी अंदर की जो अना है, उनकी जो ईगो है, अल्लाह का कुरान फरमाता है जब तू उनको देखेगा तो तू समझेगा कि ये खुशहाल है, हालांकि वो मस्कीन है। तो मैंने सर जी इसकी जो है ना, इसका जो मैंने फार्मूला निकाला है, और या मैंने ज़रूरत महसूस की है माशरती एतबार से, वो ये की है कि ज़विल कुर्बा के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और उसका कोई भी रास्ता निकाल लेना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारी में आमतौर में वो एक दूसरे से शर्म करते हैं, हिजाब करते हैं, हया करते हैं, फिर हम भी ताने देना शुरू करते हैं, उन्होंने उदो मैं जनाब वो रोटी भिजवाई, उदो मैं गोश्त भिजवाया। तो वो अगर वो चीज़ें जो है अवॉइड किया जाए, इन चीज़ों से किसी दूसरे तीसरे हाथ से अगर इमदाद कर दी जाए, तो ये इस वक्त सबसे बड़ी माशरती जिम्मेदारी मैं महसूस करता हूँ सर। जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं,
طے شدہ بات ہے तादाद में कम होते हैं। नाजरीन, जनाब नासिर महमूद शेख हमारे साथ मौजूद हैं और जो हम माशरती ज़िम्मेदारियों की बात कर रहे थे, जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि रोड एक्सीडेंट में जो लोग उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं उनके लिए बहुत कम काम किया जा रहा है, लेकिन नासिर भाई जो है ये काम बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हैं। आइए ज़रा नासिर भाई की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो इस ज़मीन में क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कुरे अर्ज पर जहाँ इंसान बसते हैं, इस वक्त बिछड़ने का, जुदाइयों का, बीमारियों का, परेशानियों का एक मौसम आया हुआ है। ये जो बहुत बड़ी बात की ये जो पेंडेमिक है जिसको हमने कोरोना का नाम दिया, इस तरह जो एपिडेमिक्स हैं, जो बहुत सी वबाएं दुनिया में वबाई अमराज आती रही हैं, लेकिन इसने माशरे को हिलाकर रख दिया है, पूरी दुनिया को। कोई तफरीक नहीं रही कि एक अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है वो महफूज है, या बरतानिया या जो बड़े बड़े ममालिक, सब इसका यकसा शिकार हुए हैं, बल्कि ज्यादा शिकार हुए हैं। जी हाँ। तो इस परेशानियों के, जुदाइयों के इस मौसम में हम बहुत ज्यादा मौत के मनाजिर देख रहे हैं। अचानक से हम फेसबुक पे किसी की तस्वीर देखते तो दिल डर जाता है कि यार इसके नीचे क्या लिखा आएगा, या अल्लाह खैर का पैगाम। दिल से एक खौफ की फिजा निकलती है। तो हम इतनी तेजी से मौत के मनाजिर देख रहे हैं कि रुकने में नहीं आ रहे। अब आपने जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात की, एक बच्चा जो तस्वुर करें कि 8 बजे घर से निकला, ये जो माएँ होती है ना जी, इनके अंदर एक अलार्म फिट होता है औलाद के लिए कि अच्छा वो फलां चीज लेने गया है, अब फलां जगह पहुंच गया होगा, अब आने वाला होगा। सही फरमा रहे हैं। तो तस्वुर करें कि बाहर बेल होती है और लोग कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो चला गया दुनिया से, रोड एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह अकबर। तो क्या बीतती है, और अचानक मौत से पनाह मांगी गई। अच्छा, हम ये तो मरने वालों पे तो हम सब्र कर लेते हैं, जो लोग जीते जी मरते हैं। हाँ। किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, किसी की हेड इंजरी हो गई, किसी की टांग फ्रैक्चर हो गई, उन पे क्या बीतती है, वो जीते जी मर जाते हैं, वो बिस्तर पे पड़े हैं। मैं आपको बताऊं, मुल्तान में मैं ऐसे 2 बच्चों को जानता हूं। एक हमारे दोस्त है अकील अवान, आज से 25 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था सर। अल्लाह अकबर। तो पैरालाइज सिर्फ उसके बाजू मिलते, वो स्टेडियम रोड पे रहता है। अभी पिछले दिनों में आप उनके घर भी थे। तो वो फिर वो यही कहता है कि यार देखो, अगर काश मैंने हेलमेट पहना होता, हिफाजत की होती। तो यार मैं आज, मेरे माँ बाप मेरी खिदमत कर रहे हैं, मैंने तो उनकी खिदमत करनी थी। ये क्या एक लम्हे में क्या हो गया, फिर सारी दुनिया उल्टी हो गई। तो इसी तरह से एक बच्चा चुंगी नंबर 1 पर रहता है, वो उस्मान साहब ताजिर हैं डेराडा के, उनका बेटा है, उसको 22 साल हो गए। तो तस्वीर करें ना, माँ बाप हर सुबह उठते हैं, वो तो औलाद को सीने से लगाए रखते हैं, हर लम्हा एक आजमाइश है। क्या गुजरती है। तो मेरी किताब जो मैंने ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर लिखी, बिखरे ख्वाब, वो ये यही उन्वान है। ये इश्क किया वो कोई वाला इश्क ख्वाब नहीं है, हकीकत है। क्या आप देखें, अभी इस कोरोना के दौरान में एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ गए हैं। वजह कि जैसे ही आपकी मुआशी परेशानियां बढ़ती हैं सर, आप ड्यूरिंग ड्राइविंग आपका दिमाग चल रहा होता है, आप कहीं जॉब करते हैं, ड्राइविंग की जॉब करते हैं, कहीं करते हैं, तो आप दौरान ड्राइविंग सोच रहे होते हैं यार इस महीने क्या होगा, सारा कुछ ख्वाब बिखर जाता है। बिल्कुल सही कर। तो ये सब हम जुड़े हुए एक दूसरे की चीजों से, और ये मैं समझता हूँ ये मेरा नहीं, ये एक तबलीग, अल्लाह की तबलीग है। कहते हैं जिसने एक जान को बचाया पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये जो मस्जिद की बात होती है, मेंबर की बात होती है, वहां से भी ये पैगाम दिया जा सकता है। हम अपने बच्चों से डायलॉग ही नहीं करते बैठ के, बेटा सुनाओ कैसे ड्राइविंग कर रहे हो, लाइसेंस बना हुआ है, हेडलाइट तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी ब्रेक कैसी है बेटा। अच्छा, अब आप देखना मुआशरे में रऊफ साहब के एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमें जल्दबाजी, हम वक्त के पाबंद नहीं है। हम बच्चों को कहेंगे ना छेती आई, जल्दी आइए, हमने अपना तकिया कलाम बनाया हुआ, कहीं वो जा रहा है, वो जल्दी आई। अरे भाई हम ये कहें कि एहतियात से आना, आराम से आना, 5 मिनट देर से आ जाना, बिल्कुल सही। ये हम नहीं कर रहे, ये हमें कर रहे हैं कि बच्चों को जल्दबाजी की तरफ ना तरगीब दें। महमूद भाई
हम घंटों बैठ के बैठक में गप्पे लगाते हैं, उसके ऊपर 2 घंटे 3 घंटे जाया कर देना कोई मसला नहीं है। लेकिन घर से लेके जहाँ पर हमने ऑफिस जाना है या जिधर जाना है उधर तक जाते हुए मैं 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। सारा जोर सड़क पे लगाना है, फोन सड़क पे सुनना है। अच्छा जी, खोतारड़ी सड़क पे आनी है जी, साइकिल सड़क पे आना है जी, कुलखानी के जनाब जो वो तंबू बनाते हैं वलीमे के वो भी सड़क पे लगनी है जनाब, और धरने भी सड़क पे होने जनाब। बिल्कुल आप देख रहे हैं कोई एक्टिविटी है, पटाखे वो सड़क पे बजने हैं जनाब, जुम्मन सड़क पे लगनी है जनाब, जनाजे सड़क पे आने हैं भाई जनाब। आप देख रहे हैं सड़क जो सिर्फ चलने के लिए बनी है, आप देख रहे हैं उसका हशर क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैंने अपने तौर पे जनाब आज से 30 साल पहले एक ऑब्जर्वेशन की, और वो मैं नासिर महमूद शेख साहब आपकी खिदमत में और भाई राजा खोसर सी साहब आपकी खिदमत में और आपके तवज्जुह से सारे दोस्तों की खिदमत पेश करता हूँ। आप सर जी अफ्तारी का टाइम देख लें, एक्सीडेंट नोट कर रहे हैं। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर जी। निकल के देख लें, ऐसे लगता है क़यामत का समय। कोई मोटरसाइकिल आ रही है तो ऐसे आ रही है, ऐसे जपाटे से आ रही है, जिसे उसे निशाना लगा रखा कि भाई इसको उड़ाना है मैंने। मेरे अल्लाह तौबा तौबा तौबा। मैंने सर जी असूल बनाया कि असर की नमाज के फौरन बाद हर बंदा अपने अपने घर चला जाए, ऑफिस क्लोज। बिल्कुल ठीक है। अव्वल तो पहले तो कोशिश है असर भी घर पे जाके पढ़े। आप जो आपने खरीदारी करनी है मेहरबानी फरमा के अव्वल वक्त में कर लें। आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे मेहरबानी फरमा दें, बड़ा टाइम है। ये जो सर जी एंड टाइम पे पकोड़े, एंड टाइम पे समोसे, एंड टाइम पे खजूरें, और फिर उनको लेके फिर पहुंचना भी है। अल्लाह मेरी तौबा। और एक हाथ से फोन चल रहा होता है, सुन रहे होते हैं, दूसरे हाथ से जनाब मोबाइल चल रहा होता है, दूसरे हाथ से। मैं कहता हूँ जी एक क़यामत का समा। वही तो अपनी जगह नासिर भाई, अब तो बाकायदा यानी मैसेजिंग हो रही है, यानी मोटरसाइकिल चलाई जा रही है, मैसेजिंग हो रही है। आज से लगभग 4-5 साल पहले मेरा बेटा फौत हुआ। तो वो 12 साल का था बज़ाहिर, लेकिन वो माशाल्लाह कद काठ में बड़ा था। हाँ जी हेल्थी था, और 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, बड़ा ज़हीन बच्चा था। तो एक खातून हमारे घर में आई ताज़ियत के लिए, और उन्होंने मेरी जो वालदा बैठी थी, मेरे वालिद साहब, मेरी बेगम साहिबा और मेरी बहनें, और उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह का शुक्र करें आप। तो वो मेरी बहन एक प्रोफेसर है, तो ये इस मिजाज के लोग होते हैं, वो फिर उसके पीछे ही पड़ गई, भाई शुक्र क्यों करें, हमारा तो बच्चा बहुत हो गया, आप कह रहे शुक्र करें। अच्छा, लेकिन वो हमारी थी बड़ी बहुत करीबी खातून। मेरे यानी कि बड़ा बेटा जो अब्दुल्ला है, उसके दोस्त की वो वालदा थी। तो हमने ये तो महसूस किया कि यार कोई बात होगी इसके अंदर। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, उन्होंने कहा देखें बात यह है कि बस वो एक मेरी बहन कह रही है हमने बड़ा सदका दिया, बड़ा सदका दिया, बड़ा सदका दिया जनाब, इतने ऊँट दे दिए, इतने बकरे दे दिए, ये कर दिया, वो कोई शय कम नहीं आई साढ़े। जिस तरह फौत की वाले माहौल में होता है, दुखी होते हैं लोग, तो वो कह रहे हैं शुक्र करें सब कुछ काम आ गया, ये सदके ने बचा लिया आपको। और वो मेरे मतलब घर वाले कहें यार हमारा तो बच्चा फौत हो गया, जवान बच्चा फौत हो गया, और ये कहते हो सब सदके ने बचा दिया। अब जनाब जब उस खातून से पूछा कि बीबी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तो उसने कहा कि जनाब बात यह है कि मेरा बेटा जो है वो 9 साल की उम्र में एक्सीडेंट की वजह से वो बिस्तर पे पड़ा है। अब जो 9-10 साल का था तो उस वक्त तो मैं उसकी केयर करती रही। अब वो मेरा बच्चा 23 साल का हो गया। अब जब वो 23 साल का हो गया है तो वो मेरा बेटा, अब मुझे बताओ मैं उसकी केयर कैसे करूं, वो तो जवान हो गया, वो तो जवान हो गया, मैं उसको किस तरह उसको केयर करूं। वो एक मुर्दा लाश हमारे घर में पड़ी है। हमने आज 13-14 साल से न कभी कोई गीत सुना, न कोई हमारे घर में खुशी हुई, ना हम कभी किसी की खुशी में शरीक हुए कि एक मुर्दा जिंदा लाश हमारे घर में वो पड़ी हुई है। हम ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। तो मैं मेरे भाई इसलिए मैं खुद बहुत दुखी हूँ। तो मैं तो इस वास्ते कह रही हूँ कि अगर उसके नसीब था तो वो जिंदा रहता, जो नहीं था नसीब तो शुक्र करो। रोड एक्सीडेंट में गया बेटा, वो जो बच्चा उनका जो बच्चा था ना उसके साथ को रोड एक्सीडेंट प्रॉब्लम हुई थी। मेरे बेटे के साथ तो वैसे कोई उसको साथ यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम थी, यानी कि उसको कोई ट्यूमर वगैरह था, तो उसकी वजह से वो उसका इंतकाल हुआ। नाजरीन एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह सिलसिले कलाम वहीं से जोड़ेंगे जहां से अभी खत्म हुआ। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रमज़ान आ गया
बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नासिर भाई। 5500 लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं। यकीन करें कि ये फिगर मैं बार बार देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि 5500 लोग कहना आसान है। अगर उनकी गिनती की जाए या 5500 लाशों को एक जगह रख दिया जाए तो यकीन करें कि जिगर फट जाए आदमी का उनको देख। फैमिली या 5500 लोग। अच्छा अच्छा, अब मेरा सवाल ये है आपसे कि इस सारे मामले में हर चीज़ सामने आ रही है, मीडिया के जरिए सामने आ रही है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, एक मसला होता है सामने आ जाता है अचानक। तो ये जो माँ बाप हैं, घर के अफराद हैं, ख़ानदान के लोग हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है इसमें? अच्छा देखिए, आपने जो बात की ना मीडिया की गैर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं है। दुरुस्त। मीडिया सिर्फ उसी एक्सीडेंट को हाईलाइट करता है जिसमें 10 या 12 लोग मर जाए। हम एक्सीडेंट उसको समझते हैं जिसमें 5, 7, 8 लोग मरे, वरना एक बंदा मरना, किसी की टांग टूटना, हम तो एक्सीडेंट समझते ही नहीं उसको। ये हमारा अलमिया है। अब मैं कहता हूँ हुकूमतों पर, इदारों पर, एजेंसियों पर कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार एक्सीडेंट वाला खुद होता है। ठीक। देखिए, अब पिछले दिनों रहीम यार खान वाला जो रोड है, कायल साहब, उस पर 15-20 लोग मोटरसाइकिल सवार ऑयल टैंकर से, ट्रालियों से टकरा कर जहां भाग हुए। अल्लाह। अब आप तस्वीर करने में कहते हैं ना, मौत के फरिश्ते की शक्ल सी मौत। भाई ऑयल टैंकर, ये कंटेनर, ये सब मौत के फरिश्ते हैं मोटरसाइकिल वाले के लिए। ठीक, उसको खुद फासला रखना है। ठीक है, ठीक है, अपने आप को बचाना है। जिद नहीं करनी, मुकाबला नहीं करना, फासला रख लो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। बेसब्रे हैं हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सब्र नहीं करते, जिसका हम फिर नतीजा भुगतते हैं। सर, साउथ पंजाब, हमारा जो जनूबी पंजाब है, यहाँ पर 110-115 लोगों की हलाकत जो रजिस्टर्ड है हर महीने, वो है। सिर्फ साउथ पंजाब के जो 11 अजला में उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। पूरा पाकिस्तान तो बहुत दूर है ना जी। हम अपने साउथ पंजाब जितना साढ़े सराइकी वसेब की गाल करें, सराइकी कोई कहीं नहीं, आवाज तो नहीं चाहिए मौके यार, हर महीने सेंचुरी मुकम्मल थी पई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो लोगों को अब ये शऊर अपने बच्चों को खुद देना है। तालीम पर बहुत पैसा लगाया जा रहा है, वालिदैन अपना पेट काट कर नंबरों की दौड़ लगी, लेकिन तरबियत का फुकदान है कि तरबियत की जरूरत है। ये भी तालीम के साथ तरबियत लाइफ है आपका कि इसमें तरबियत क्या है। एक लतीफा सही, एक बंदा कश्ती में बैठा सफर कर रहा था, मौलवी साहब आलम दीन बैठे, और उसको मल्लाह को कहते हैं, हाँ भाई को दुआ शुआ दी है तेरे को? तो उसने कहा जी नहीं। उसने कहते हैं अपनी आधी उम्र जाया कर दी थी। कश्ती चलना शुरू हुई, तूफान आ गया। अब उसने मुड़ के कहा, मौलवी साहब तो आपको तैरना आ गए?
उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा तो आज पूरी उम्र जाया कर ली। क्या अच्छा ये मैसेज है, लतीफा नहीं है कि हर चीज की अपनी अहमियत है। कुरान की दुआओं की अपनी अहमियत है, लेकिन अपनी हिफाजत का अल्लाह ने खुद हमें हुक्म दिया हुआ है। खुदकुशी को हराम क्यों करार दिया कि खुद की हिफाजत करनी है, तो इसलिए हमें अपनी हिफाजत करनी चाहिए, हमें ज़ाब्तों की पाबंदी करना चाहिए। हम जिस रमजान शरीफ में बैठे हैं, इसका बुनियादी फलसफा क्या है, छोटा सा गौर कर लें। क्या था? आपके सामने खाने पीने का सारा सामान रखा होगा, आपने इसको हाथ नहीं लगाना, बर्दाश्त करना है, अजान का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब उल्टा हो गया काम। जिस घर का खर्चा 10,000 रुपया था, जिस घर का खर्च 10,000 था, अब वो 20,000 है। जिस घर का 1 लाख था, वो 2 लाख है। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही, तयशुदा बात है, बिल्कुल ऐसी है कि वो जो सब्र तहम्मुल का जो 10 दिया गया, वो सब उल्टा हो गया। हम कहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं? आप अफ्तारी के टाइम हमारे देखें क्या क्या साजो सामान और चीजें, तो इसलिए वो सब्र का जो फलसफा है, हम थोड़ा सा उससे दूर है, हमें उस पर भी जाना चाहिए, सादगी को अपनाना चाहिए, सादगी को अपनाना चाहिए। और यही सब्र तहम्मुल सड़कों पर भी नजर आए, इंसानों के साथ रवैयों में भी नजर आए, बर्दाश्त का अमल होना चाहिए। कोई अगर आपसे कमतर, कोई आपसे गुस्से में बात कर रहा है, तो इस्लाम तो बड़ा मजेदार मजहब है जी। नबी के वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि जी मैं बहुत परेशान रहता हूँ। आपने फरमाया सदका खैरात किया करो। सुभान अल्लाह, तो उसने कहा जी मेरे तो अपने खावड़ को कोई शय नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं, तुम लोगों से मुस्कुरा के बात कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसमें तो कुछ खर्च नहीं होता। तो इतना आसान, इतनी आसानियां मजहब में, उसकी तालीमात में, क्या आप तसव्वुर नहीं कर सकते। खुद को जबर वाला हम अगर बना लें, अभी जैसे कारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, इन्होंने बहुत अच्छा फलसफा दिया कि यार ये जो मदद का अमल है अपने अजीज़ो क़ारब में कर ले। अब दौर में कुरान मजीद की आयत है, हम लोग जो अपनों को देते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और हमारे अपने हमारे से शर्माते हैं, एक अना की बात है। तो कुरान मजीद में कहा गया है कि हालत नाराजगी में भी अपने रिश्तेदारों की इमदाद न बंद कर देना। अगर आपकी किसी रिश्तेदार से नाराजगी है, तो कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा है कि हालत नाराजगी में भी अपने रिश्तेदार की इमदाद न बंद करना। तो कुरान तो बड़ा 1400 साल से ही मैसेज दे दिया है, वो आज के दौर में फिट आता है बिल्कुल ऐसे कि हम उसको खुद गले लगा लें, खुद चले जाएं। ये है एसार, कुर्बानी, मोहब्बत और फलसफा। बेशक जो कारी साहब ने बात की है, बड़ी दिल को लगी है मेरे। साहब ये जो बेड़ा ये रोड एक्सीडेंट के हवाले से आप लेके चले हैं, इसके अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दीगर बड़ी बड़ी जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी 2 रिसर्च में आपके सामने पेश करता हूँ जी। पहली तो ये कि रोड एक्सीडेंट की बहुत जो सबसे ज्यादा कॉमन वजूहात है वो क्या है। उसकी जो 3 कॉमन वजूहात हैं, उसमें सबसे पहली है तेज रफ्तारी, दूसरी है सर ओवरटेकिंग, और तीसरी है सड़क पे इंटर होने और सड़क से जो है ना बाहर निकलते हुए, मेन रोड से, मेन रोड पे चढ़ते हुए और मेन रोड से बाहर निकलते हुए ये एहतियात ना बरतना। ये 4 जो है ना मेन कॉमन चीजें हैं रोड एक्सीडेंट की। पहली तेज रफ्तारी, दूसरी ओवरटेकिंग, तीसरी जो है जब आप रोड पे जा रहे हैं तो आपने जब रोड को छोड़ना है तो उस एहतियात करके छोड़ना है। सही, ठीक है। और जैसे ही इंटर होना है रोड पे, वो भी अपने आप तरीके से के साथ इंटर हो, आप ऐसे अंधाधुंध इंटर ना हो। आप देख रहे हैं ये चीजें। अच्छा, जिस तरह नासिर भाई फरमा रहे थे, 100 जो 10 बंदे हैं या 20 लोग हैं जनूबी पंजाब में जिनकी डेथ हो रही है रोड एक्सीडेंट के साथ, ठीक है, उनमें आपने कभी गौर किया अंदर की क्या बात क्या होती है? और यार में मेंटल आमी, और यार में मेंटल फिक्र ना कारी में मैं 2 मिनट जाना पिया। भाई आप 2 मिनटों में कैसे आ सकते हैं? आप जहाँ बैठ के 2 घंटे गप्पे लगा रहे हैं, उसमें से 20 मिनट मेहरबानी फरमा देना, टाइम निकाल लेना। जब एक चीज जाना ही 20 मिनट के अंदर है और आना भी 20 मिनट के अंदर है, तो 2 घंटे किए सही फरमा, ठीक है। वो जिस तरह अभी ऑफलाइन आप फरमा रहे थे कि जी मोटरवे पे जा रहे हैं, 120 की स्पीड दिखा के शेयर कर रहे हैं, 120 नहीं सर 180 सॉरी 180 की स्पीड शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बड़े फखर के साथ भाई ने कहा कि वो जब वो दिखा रहे होते हैं ना कि 180
दिखा रहे थे वो दुनिया से जा रहे होते हैं। हाँ, बताने के लिए मौजूद ही नहीं होते। बताने के लिए मौजूद ही नहीं होते। भैया आप किसको दिखा रहे हो? अच्छा फिर कौन सा तुम्हें तुर्रा इम्तियाज मिल जाना है, यहाँ तमगा इम्तियाज मिल जाना है, कोई तमगा बसालत मिल जानी है बिला वजह में खा दिमाग के सारे जहान की एजिटेशन जो है दिमाग पे बिला के वो सड़कों के ऊपर निकालते फिर रहे हैं। अच्छा जी कभी बादल के साथ इवे थोड़ा जिहा सजे खब्बे थी वञो कई साइकिल मोटरसाइकिल दे नाल उन्हें बाद वालों ने जेड़ा कहर आलूद निगाह नाल तो देखने ना ओ अल्लाह माफी दे मैं बड़ी गंदी मिसाल है रमजान से मैं नहीं सकदा इवे देखने उन्हें अल्लाह माफी साहब तुम्हारी एंजाइटी घट करूं बड़ी करो तुम्हारी गुस्सा घट करूं वो एक बार ना घरों वंजन लगा तो अम्मा को आदे अम्मा दुआ करना मेरे वास्ते। मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता था तो कहता अम्मा मेरे वास्ते दुआ करना। अम्मा कहती पुत्र मेरी दुआ दी स्पीड जेडी 80 किलोमीटर तो ज्यादा कोई नहीं दी। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। जरा 80 तो ऊपर मेरी दुआ को नहीं नाल। तो आज देखिए बड़ी अहम बात है कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं आपने देखा है ये जो बड़ी बसें वैगने इनके ऊपर दरबार शरीफ और अल्लाह मोहम्मद कलमे क्या क्या लिखा होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन कोई भी चीज उनको नहीं बचाती क्योंकि उनकी अपनी गफलत कोताही और रब ने अपनी हिफाजत का खुद हिक्म दिया कि अपने जान माल की हिफाजत करो, नहीं करते। नासिर भाई कई वीडियोस आपने देखी होंगी कि दोनों बसें मुकाबले पे चल रही हैं, बसें भरी हुई हैं और भगाए चले जा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 55 ਬੇਵਕੂਫ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ बहुत अच्छी बात, सही कह रहे हैं। 55 ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਅੰਦਰ बिल्कुल ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ को नहीं समझे वो भी एंजॉय कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਤਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਓ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। बिल्कुल ऐसी ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵੰਜਣੇ ਅਸਾਂ ਕਈ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੰਜਣੇ कहीं ने खुशी दे कहीं ने घर बजने और भी 55 बेवकूफ आदमी ठीक है चेक कर को सीटों को पकड़ लेंगे आंखें बंद कर लेंगे भाई जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यही रमजान मुबारक का पैगाम है, यही महीना है सब्र का, बर्दाश्त का, तहम्मुल का, यकीनन। और ये जिंदगी के हर शोबे में मैंने बताया ना बुनियादी फलसफा रमजान का कि आपके सामने खाने पीने की हर चीज नेमत मौजूद है, आपने हाथ नहीं लगाना, अमल मिजाजी से काम लेना है। तो यही फलसफा हमें हर तरफ ले जाना है। ये रमजान जो है अल्लाह से तिजारत और इन्वेस्टमेंट का महीना है और इसमें अल्लाह से हम यही तिजारत कर सकते हैं कि उसके अहकामात की पाबंदियां कर लें, उसकी खल्क़े खुदा की अगर जितनी खिदमत हो सकती है वो कर लें। और ये भी खिदमत है कि ये पैगाम पहुंचा दें हम भलाई का, जिस तरह से ये आपके मक्स की नशरियात हैं, आप इन प्रोग्रामों के जरिए मकसद तो आपका यही होता है कि लोगों को फैज़ मिल जाए, बामकसद बातें हो जाएं, कुछ लोग सबक ले लें, कुछ लोग खुद को सुधार लें और बेहतरी का अमल हो जाए। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों को बराबर साबित करे, इसके अच्छे असरात आए। मुआशरती जिम्मेदारियों की बात हो रही है तो आप जो थैलीसीमिया के मरीज हैं या बच्चे हैं उन पर भी आप खासा काम कर रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि इस हवाले से क्या कुछ हो रहा है। अच्छा देखिए बदनसीबी ये है कि थैलेसीमिया और हेमोफीलिया, कल हेमोफीलिया का आलमी दिन था तो उसमें ये दो बीमारियां बड़ी मुजी मर्ज हैं जिनको आ जाए, बड़ा आसान फार्मूला दे दिया तहकीक ने और लेबोरेटरीज के जरिए एक फलसफा दे दिया कि शादी से पहले कजन मैरिज जो है उसमें ज्यादा इम्कानात होते हैं। अगर कजन मैरिज से पहले टेस्ट करा लिया जाए, छोटा सा टेस्ट होता है, वो करा दिया जाए तो आपको पता लग जाता है कि इन दोनों के जो ब्लड के सैंपल्स हैं उसके भी कि भाई इनके क्रॉस मैच के बाद ये होगा कि इनका अगर बच्चा हुआ तो खदशा होता है थैलेसीमिया का, तो बचा जा सकता है। अच्छा, अब हम चूंकि बहनों बेटियों के रिश्ते नहीं होते हैं तो इस खौफ से नहीं कराते कि यार किधरे टेस्ट खराब आ गया तो क्या करेंगे, ये अलमी है फिर नताइज। तो मेरी गुजारिश है कि अगर ये अब हुकूमत ने कानून भी बना दिया है कि शादी से पहले अगर आप मियाँ बीवी दोनों टेस्ट करवा लें, होने वाले मियाँ बीवी टेस्ट करवा लें तो इस मुजी इमराज से भी बचा जा सकता है। तो इसमें समाजी तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है थैलेसीमिया के मरीजों के लिए वो क्या है और हम किस तरह इसमें शेयर कर सकते हैं? देखिए सर हमारी 22 करोड़ की आबादी है, अगर इसमें से सिर्फ 1 करोड़ लोग साल में एक मरतबा खून का अतिया दे दें अल्लाह की रजा के लिए, जिसका फैज मिलना ही मिलना है, तो वही खून देखो ना, कहते हैं कि बहा लो खून सड़कों पर, मगर ये तो जरा सोचो वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। हम ये सड़कों पर एक्सीडेंट में हमारी कितनी बोतलें जाया हो जाती हैं। अगर हम ये नियत बना ले कि मैंने इस साल अल्लाह की राह में ब्लड का एक बैग देना है किसी को अल्लाह की राह, आपका एक्सीडेंट ही नहीं होगा, मेरा ईमान है इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। तो खून का अतिया देने की नियत बना ले तो उससे थैलेसीमिया वालों को मदद हो सकती है, रोड एक्सीडेंट्स वालों को हो सकती है, ये बहुत बड़ी खिदमत है।
हर कोई कर सकता है। चलिए, कोई बाकायदा तहरीक चल रही है? जी, बहुत से अल्लाह लोग हैं जो ये करते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के अजीज़ो अकारब रिश्तेदार शुरू में तो बेचारे सब लोग सपोर्ट करते हैं, बाद में हट जाते हैं। तो लोगों को इसकी अहमियत को तो पता है कि खून का अतिया देना थैलेसीमिया हेमोफीलिया वालों के लिए एक नेमत से कम नहीं है। वो तो बेचारे हर 15 दिन के बाद अपनी खुराक से ज़्यादा उनको खून की तलाश होती है कि इस 15 दिन के बाद हमें कोई बैग मिलेगा तो हम अपने बच्चे को बैग। अमीर साहब, मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए हमारे जो आज का मौजू है माह सयाम और मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ, तो कोई खुसूसी पैगाम अता फरमाइए। माह सयाम और हमारी मुआशरती ज़िम्मेदारियों के हवाले से माशाअल्लाह हमने 3 टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू की है। पहला ये था कि हमने अपनी मस्जिद और मिंबर को अच्छा रखना है, उसके साथ अपना रिश्ता और नाता मजबूत करना है। हमें अल्लाह रसूल की बात वहाँ से मिलेगी, और उसके ये जो आप परिंदों से प्यार कर रहे हैं, चरिंदों से प्यार कर रहे हैं, इसका जब आप मरकज़ जाके देखेंगे ना, मरकज़ तो मरकज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही आएगी। ठीक है ना जी, मरकज़ आपकी ज़ात ही तही होगी। और ऐसे 20 वाक़यात आपको मिल जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, जो आपने परिंदों के साथ मोहब्बत फरमाई, शफ़क़त फरमाई, हमदर्दी फरमाई, रहम फरमाया। रहमतुल लिल आलमीन का टाइटल अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, तो ये हर रहमत का जो पहलू है उसका मरकज़ और मुब्दा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पना है। इसी तरह से फिर हमने ये कहा कि हमने जो बेज़बान चरिंद परिंद हैं उनका ध्यान कैसे रखना है। फिर हमने कहा कि ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबील, हमने उसके ऊपर बात की कि अपने अजीज़ व अकारिब की तरफ ज़्यादा अगर तवज्जो दे दी जाए तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वबा में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे पेशेवर लोग जो है वो ज़्यादा एक्टिव हैं बनिस्बत उन लोगों के जो मुस्तहकीन हैं। इसी तरह से बेसब्री नहीं करनी चाहिए, एहसास बेदार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। बच्चों से जैसे नासिर भाई ने बात की, कभी डिस्कस किया मैंने? कभी किया? यार तेरी ब्रेका ठीक नहीं, तेरा लाइसेंस है, हेडलाइट सही चल रही है, तू बिल्कुल सही टाइम पे आ रहे हैं, सही टाइम पे जा रहे हैं, किसी ने कोई बात की है? कोई बात करता ही नहीं है। ठीक है ना जी। और क्या यानी कि जुल्म की अखीर नहीं है कि यार 500 100 200 घंटियाँ बजे और वो जो बेचारी माँ बैठी इंतजार में अपने बच्चे की, और उसको इतला मिलेगा जनाब तुम्हारा बच्चा तो दुनिया में नहीं रहा। जी ये कितना बड़ा अलमिया। और बताएं आज तक इसके ऊपर किसी ने आवाज़ उठाई? कोई एक प्रोग्राम। हम जब छोटे थे तो हमने टेलीविज़न पे ज़िंदगी में पहला से आखिरी प्रोग्राम वो देखा था, जिसमें वो यही दिखाते हैं कि एक तेज़ गाड़ी जा रही है, एक आहिस्ता गाड़ी जा रही है मियां रवि के साथ, और वो दिखाते हैं कि एंड पे जाके दोनों मियां रवि के साथ पहुँचती। वो जो मियां रवि वाली थी वो भी उसके बराबर में जाके पहुँचती है। एक हमने और देखा था कि एक गर्मी है शदीद, और एक बंदे ने सर के ऊपर जो है ना वो जो है कुछ बांधा, रुमाल बांधा हुआ, हाँ जी, और गर्मी को वो उसने किया हुआ, टोपी शोपी पहनी हुई है, उसने हैट पहना हुआ है। और एक बंदा बगैर वो हैट के जब गया है तो वो गर्म शुआएं उसको ऐसे जावे से लगी हैं कि उसको दिमाग पतरा गया और वो बहुत नुकसान उठा बैठा। ये कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा हमने ऐसा प्रोग्राम देखा था। या अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये खूब प्रोग्राम जो है ना ये आज हमने किया है, तो अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बायस निजात बनाए, उखरी निजात का बायस बनाए। मक्स न्यूज़ को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की और कामयाबी नसीब फरमाए। बदलता ज़माना की टीम को भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत तरक्की और कामयाबी नसीब फरमाए, और इस किस्म के संजीदा और इस किस्म के सदका जारिया, और ऐसे यही असल सदका जारिया है जी, अहम मौज़ूआत पर जो वाकई मौज़ूआत हैं, जो वाकई मौज़ूआत हैं 5500 बंदा का यानी कि एक हिला देने वाला फिगर है ये। नासिर भाई, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मक्स न्यूज़ के नाज़रीन के लिए कोई खुसूसी पैगाम, ख़ास तौर पर नस्ल नौ के लिए जो वन व्हीलिंग की तरफ राग़िब है, और बहुत सारे ऐसे मामला जो आप समझते हैं आपकी किताब में मौजूद है, मैंने भी पढ़े हैं, उस हवाले से ज़रा खुसूसी मैसेज दीजिए। जी मैं दोबारा से भी बात दोहरा दूँ, योर वर्क इज़ रिमार्केबल। लोगों को पैगाम देना बहुत अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ के महीने में जब हम इबादत की तरफ थोड़ा सा माइल होते हैं, हमारा दिल जो है वो थोड़ा सा नरम होता है, हम अल्लाह के पैगाम की तरफ रुजू कर रहे होते हैं, तो इस मौके पर मैं समझता हूँ ये तबलीग है इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ सलामती के लिए। वो कहते हैं कि जिसने एक जान को बचाया तो पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो इस तरह के बामकसद पैगाम होने चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो लोग बुज़ुर्ग हमारे हमने देखा है बिस्तरे
کاندھوں پر لاد کے اور تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں. اب اس کو آسانیاں کر دیں. اب آسانیاں کر دیں کہ یار یہ بھی تبلیغ ہے کہ میں نے جانوں کو بچانا ہے, لوگوں کو پیغام دینا ہے. بسوں کے اڈے پر چلے جائیں, ڈرائیوروں کو پیغام دے دیں. پارکوں میں چلے جائیں جہاں لوگ پرندے پھیرے ہوتے ہیں کہ یار ان کا خیال کریں. اب اس کو اپنی تبلیغ کا مشن نظریہ ضرورت کے تحت تبدیلی کی جائے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور اللہ تعالیٰ میرا گمان ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ پسند فرمائیں گے کہ یار یہ میری جو امت کی فلاح کے لیے بہت اچھا کام کو جی بہت اچھا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ خدمت ہو رہی ہے. آپ کو بھی اجر دے اور اس طرح کے پروگرام آپ کرتے رہیں. بہت شکریہ. جناب ناصر محمود شیخ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا شکریہ. جناب قاری میاں عبدالقریش صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے صحرا سے گفتگو کی. اور ناظرین, آخر میں ایک شعر کے جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا, کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. تو یہ ایک نیکی کی ترغیب ہے سب کے لیے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.